how to score 90 plus marks in your prelims examination 2025 of UPSC CSE. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise previous year's question paper analysis on this platform. Our today's video would be about Modern History Unit 3, that is Emergence of Indian Nationalism 1857 to 1919. So what could be the possible timeline we could think of between 1857 to 1919? Let's have a brief overlook on it and then we will start the discussions on the questions. Number one, we could think is about 1885, that is the formation of Indian National Congress. And also before 1885, there were many small political organizations were formed, specifically in Bengal, in Madras and in Bombay. So our focus would be names of those political organizations and the founders of those political organizations. So after 1885, that is the formation of Indian National Congress, next important event was the partition of Bengal in 1905, which was followed by Swadeshi and boycott movement. After it, 1907, that is the Surat split, where moderates and extremists differed greatly in their opinion, and consequently we have seen the Surat split. And then after a few Congress sessions, we have seen that in 1911, it led to the annulment of the same Bengal partition which occurred in 1905. And then 1914 was the year which started the First World War, and as a result, or we could say that because of many reasons after the World War I, the feeling of nationalism has started among the Indians. And as a result, a very important movement, that is Home Rule movement, was started by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. Right? And also, after this, we will have a look on Morley-Minto reform, and followed by it the first phase of revolutionary activities in Bengal, also outside the India. For example, the Ghadar movement is very important. We'll have a look on the Lucknow Pact as well, that is the Congress session of Lucknow, where both Indian National Congress and Muslim League came together. So this Congress session is very important in itself. And also, we will have a look on the formation of Muslim League, the coming of Mahatma Gandhi ji from South Africa to India, and three important events under him. For example, the Champaran, the non-cooperation movement, the first hunger strike. So these would be the topics in this video, जिसमें ये सारे questions हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. Alright? ठीक है. बढ़ते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड रश बिहारी बोस. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Who of the above was or were actively associated with the Ghadar party? हर एक क्वेश्चन में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द एग्जामिनर. ये गदर पार्टी, दैट मीन्स ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वहां में से. तो जब भी हम फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ते हैं, एक वहां पे हम पढ़ते हैं कि जो बंगाल वाला एरिया है वहां पे कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी, पंजाब के अंदर कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी, अब्रॉड के अंदर कौन सी रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज है यहाँ पे आपके पास देखा गया, और महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल नासिक
जो आपके पास नासिक वाला जो केस था वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक माइंड मैप बन गया होगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि बरिंद्र कुमार घोष, ये नाम जब भी आता है, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट विच अकर्ड इन दी बंगाल। बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति का फॉर्मेशन किया था परमार्थ मित्र ने, और उन्हीं के बाद में यहाँ पे जिसने इस मूवमेंट को लीड किया था, he was बरिंद्र कुमार घोष। So this person is definitely not associated with the Gadar party. So we can clearly eliminate the option A and option C. Next is about जोगेश चंद्र चटर्जी। ये भी बंगाल के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से ही कनेक्टेड है। इनिशियली इन्होंने भी अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया था, ठीक है, और बाद में जाके ही बिकेम द पार्ट ऑफ HRA। सो बचते हैं हमारे पास रश बिहारी बोस। ही इज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। ओके, सो इफ वी वांट टू टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द गदर रिवॉल्यूशन, सो वी कैन क्लियरली से दैट इट वॉज अ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो कि इंडिया के बाहर स्टार्ट हुआ था। इंडिया के बहुत सारे लोग कनाडा के अंदर रहते थे, स्पेशली जो एक्स सोल्जर्स थे, एंड दे फेस्ड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द कनाडा, एंड एज अ रिजल्ट टू इंपॉर्टेंट पर्सन्स तारक नाथ दास एंड GD कुमार, इन्होंने कनाडा में एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वहाँ पे स्टार्ट कर दिए, और वहाँ पे गवर्नमेंट उनको रिप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने अपना जो नया सेंटर जो है बनाया, हेडक्वार्टर जो बनाया, वो सिएटल में बनाया, ठीक है। और इन दोनों ने वहाँ पे एक गदर पार्टी का जो पूरा एक न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल है वो स्टार्ट किया, और उसी के नाम पे ये गदर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आगे जाके कहलाया गया। लाला हरदयाल जो है, ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। 1911 was the time जब लाला हरदयाल जी यहाँ पे USA में गए, and he started the Yugantar which was talking about the Rush Bihari Bose. तो yes, answer would be D, which says the Rush Bihari Bose is associated with the Gadar party. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमें मालूम होना चाहिए कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल में जो अनुशीलन समिति है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। Gadar revolutionary movement becomes very important. Coming to the second question, which one of the following is not a political method of moderates in the national movement? पहला है overthrow of the alien rule, constitutional agitation, slow orderly political progress, and mobilization of the public opinion. See, we all know that 1885 was the time when Indian National Congress formed. But जो initial time था from 1885 to 1905, this was a timeline when moderates dominated the Congress political party. And who were the moderates? Moderates were those who believed in the British government. उनको ऐसा लगता था that Britishers are not aware of the conditions of India. Once we will make them aware, they will definitely do good things for the Indians. So their ways was constitutional तरीके से काम करना, petitions को follow करना, right? Letters लिखना. But in 1905, after trying a lot, partition of Bengal occurred, which led a huge amount of anger in the political party, and the extremist leaders, for example, Bal Gangadhar Tilak, right? They said that we should not follow the moderates anymore. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर जो नेशनल मूवमेंट है उसमें मॉडरेट्स जिस तरीके को अपनाते थे, दैट इज PPP, पेटिशंस फॉलो करना, राइट। उनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जो मॉडरेट्स का नहीं है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आंसर है A,
ओवरथ्रो ऑफ द एलियन रूल। दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स फॉलो करते थे। ऑलराइट, सो मॉडरेट्स जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन का तरीका होता था स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि मैगजीन्स लिख देना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना। करेक्ट। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन विच सेज with reference to the Swadeshi movement, consider the following statement. So we all know 1905 was the time जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था, और जो ऑफिशियल रीजन दिया गया था कि जो बंगाल की पॉपुलेशन है इट इज वेरी बिग टू एडमिनिस्टर, so we are dividing it into parts so that we can administer it in a very well manner, और इसमें असम का भी डेवलपमेंट देखा जाएगा। But in reality, the main reason for the division of the partition, or for the division or the partition of Bengal, was the divide and rule policy. That means to create a division among the people on the basis of religion. Hindu Muslim factor they introduced over here, which is still continuing. All right. So after the 1905, when moderates were failed to convince the government, a Swadeshi and boycott movement was started. Right? So with reference which of Swadeshi and boycott movement, consider the following statement. Number one is, it contributed to the revival of the indigenous artisan craft and industries. देखो इसके नाम से भी आप बोल सकते थे स्वदेशी मूवमेंट, खुद की ही देश का, स्वदेश का। और फिर भी कॉमन सेंस की बात है कि 1905 में जब पार्टीशन हो गया था बंगाल का, तब लोग नाराज हो गए थे और उन्होंने ये बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया था कि कोई भी ब्रिटिशर्स की गुड्स है, कुछ भी चीज़ हम उनको यूज़ नहीं करके इंडिया की जो चीज़ होंगी उन्हीं को ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट 1 और 2 एक्चुअली दोनों ही करेक्ट है। राइट, दैट इज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन was established as a part of Swadeshi movement. ठीक है। Now moving towards the question number 4, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको important persons का नाम दिया गया है और राइट साइड में 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था उससे पहले जो कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी उनके नाम यहाँ पे दे रखे। सो आपको बताना है कि इनके जो फाउंडर्स हैं उनका नाम यहाँ पे सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। ठीक है, पहला दे रखा है राधाकांत देव एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सेकेंड स्टेटमेंट है गजलू लक्ष्मणरासु चैती एंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। देन थर्ड इज अबाउट द सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। सो बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस रिवाइज all the political organizations and the names of their founders in a very brief way. So starting with Bengal, there were 3 main areas. एक बंगाल के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, बॉम्बे में बनी थी और मद्रास में बनी थी। अगर हम बंगाल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट 4 से 5 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी। सबसे पहला है बंगाल से ही आप याद रख सकते हैं बंग भाषा प्रकाशिका, यानी बंगाल की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बंग भाषा प्रकाशिका। ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनके जो फाउंडर है उनका नाम था गौरी शंकर तुर्कबाकिश। फिर जो नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में जो होती है वो है आपके पास जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंडलॉर्ड सोसाइटी। तो बेसिकली इनके फाउंडर्स को याद करने के लिए आप छोटे छोटे ट्रिक्स आप बना सकते हो सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट मेथड आई यूज्ड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इज द जमींदारी एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल जिसकी खुद की जमीन होती है, लैंड होता है, सो दैट पर्सन बिहेव like a king, like a raja, right? So basically the जमींदारी एसोसिएशन फाउंडर का नाम हो जाएगा राजा राधाकांत देव और उसी के साथ
एक और है दैट इज द्वारकानाथ टैगोर, है ना, कि द्वारका जी का आशीर्वाद है, राजा जैसी लाइफ है, जमीन हमारे पास है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, दैट इज द जमींदारी एसोसिएशन. फाउंडर्स के नाम हो जाएंगे यहाँ पे राजा राधाकांत देव और आपके पास हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर. तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, दैट इज राजा राधाकांत देव. क्या वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे? नहीं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ जमींदारी एसोसिएशन. ठीक है, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी भी बोला जाता है. सो वंस अगेन, बंगाल में पहली जो ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी वो थी आपके पास बंग भाषा प्रकाशिका, जिनके फाउंडर का नाम था गौरी शंकर तुर्कबागिश. उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दैट इज द जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंडलॉर्ड सोसाइटी. इनके जो फाउंडर है उनका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज राजा राधाकांत देव या फिर द्वारकानाथ टैगोर. फिर बंगाल में थर्ड जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपके पास बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी. तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी. तो ये ब्रिटिशर्स जैसा ही इनका कुछ नाम है फाउंडर का. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक मेमोरीज, राइट, कि जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है इनके जो फाउंडर है उनका कुछ ब्रिटिशर्स जैसे ही नाम होगा, यानी कि जॉर्ज थॉमसन इज द फाउंडर, है ना. तो यहाँ पे फाउंडर कौन है, जॉर्ज थॉमसन इज द फाउंडर ऑफ बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी. बट 1851 में आपके पास बनता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनता है, जिसमें ये जो जमींदारी एसोसिएशन है और ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है, ये दोनों का मर्जर हो जाता है. और यहाँ पे जो नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो है आपके पास ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. तो इनके जो फाउंडर हैं एक तो यही हो जाएंगे जो जमींदारी वाले थे, दैट इज राजा राधाकांत देव, और उसी के साथ एक और इंसान का नाम यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो है आपके पास राजा काली कृष्ण देव. ठीक है, राजा काली कृष्ण देव और राजा राधाकांत देव. 1851 का ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्होंने ये ध्यान में रखा था कि 2 साल बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आने वाला है और इसमें इन्होंने अपने कुछ डिमांड्स भी रखी थी जो कि कुछ हद तक एक्सेप्ट करी गई थी. तो ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसको काफी सक्सेसफुल माना जाता है. तो यहाँ पे ये जिसको हमने गलत बताया था, इट वाज जस्ट टू चेक यू ऑल, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए. राजा राधाकांत देव इज द फाउंडर ऑफ जमींदारी एसोसिएशन एज वेल एज द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. तो अगर यहाँ पे जमींदारी एसोसिएशन आता तो भी ये करेक्ट होता, और यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आया है तो भी ये करेक्ट होता. ठीक है, इसी के साथ फिर बंगाल में एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था इंडियन लीग. इनके फाउंडर थे सिसिर कुमार घोष, और उसके बाद फाइनली बनता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा. ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये वाला जो चीज है, इनके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. अब आते हैं जो मद्रास महाजन सभा है उनके ऊपर. ठीक है, सो मद्रास में 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. बंगाल के हमने याद कर लिए. जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है वहां पे भी 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने थे. पहला था पूना सार्वजनिक सभा, यानी कि मुंबई से अगर पूना जाना है तो आपको भागते हुए जाना पड़ेगा तभी टाइम पे पहुंचोगे, यानी कि रन, यू हैव टू रन. So this is how you can learn. That is Pune सार्वजनिक सभा. Name of the founder is M.G. Ranade. All right. और उसी के साथ है आपके पास एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. B फॉर बॉम्बे, B फॉर बदरुद्दीन त्याबजी. तो यहाँ पे जो फाउंडर है उनका नाम हो जाएगा बदरुद्दीन त्याबजी या फिर KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता. अब आते हैं मद्रास में.
मद्रास में जो भी अजीब नाम है वो मद्रास की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मद्रास महाजन सभा, जिनका यहाँ पे सवाल आया है, तो इनके जो फाउंडर्स है उनका नाम है एम फॉर मद्रास, और एम से ही उनका नाम स्टार्ट है, दैट इज एम वीर राघव चारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और बी आनंद चालू। तो ये जो नाम है दैट इज गुजुलू लक्ष्मी नारासू शेट्टी, ये गलत है, ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो गलत है। तो आप यहाँ पे इनको एलिमिनेट कर सकते हो और इनको कर सकते हो, तो आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907? देखो, हमने देखा कि इनिशियल जो टाइम था 1885 से लेके 1905, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट्स ने डोमिनेट किया था। दैट मीन्स प्रेयर करना, पेटिशंस करना, ये उनका तरीका था। और 1905 में ये देखा गया कि इनकी पेटिशंस का, प्रेयर्स का कुछ फायदा नहीं हुआ, बंगाल का पार्टीशन तो फिर से कर दिया गया। तो ये रीजन बना कि आगे जाके 1907 में कांग्रेस का जो सूरत सेशन हुआ था उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में स्प्लिट हो गए, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस था, उनकी बिलीव्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था, दैट हाउ वी शुड फाइट विद द ब्रिटिशर्स। नाउ लुक, लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. First is introduction of communalism into the Indian politics by Lord Minto. तो ये तो आसपास भी नहीं है अभी. Second statement है extremist lack of faith in the capacity of moderate to negotiate with the British government. Third is foundation of Muslim League and fourth is the Aurobindo Ghosh. तो basically यहाँ पे clear cut statement B is the answer कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था मॉडरेट्स के ऊपर कि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर पाएंगे, राइट? बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी देखा कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया है, सो देयर इज नो वे दैट दे कुड हैव ट्रस्टेड एनी मोर ऑन द मॉडरेट्स. ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. द स्वदेशी एंड बॉयकॉट were adopted as a method of struggle for the first time during, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि बंगाल में पार्टीशन हुआ 1905 में. ठीक है, और यहाँ पे जब पार्टीशन हुआ तब जो जनता का गुस्सा था या फिर जो आपके पास मॉडरेट्स थे, they started a movement known as the स्वदेशी movement. Correct? So the answer is very simple, that is agitation against the partition of Bengal. 1905 आपके पास टाइमलाइन है जिसमें बंगाल का पार्टीशन हुआ, और इसी को फॉलो करके जो आपके पास मूवमेंट चला गया वो था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट. इफ यू टॉक अबाउट द होम रूल मूवमेंट, ये आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 के समथिंग आया था 1914 में, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट. बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, राइट? बट इनके जो रीजन्स थे वो बहुत स्पेसिफिक एरियाज थे. एनी ने बाद में किया था, बट शी स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट दोस एरियाज जहाँ पे तिलक ने स्टार्ट किया था. देन वी हैव द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द साइमन कमीशन, जो कि बहुत आगे जाके आता है. देन क्वेश्चन 7th, which says who of the following was or were the economic critique of colonialism in India? ये 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं, दादाबाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त. सो बेसिकली इसमें इतना देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, दीज आर द डायरेक्ट नेम्स. अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए दैट दादाबाई नौरोजी, इनकी बुक जो है उनका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जी सुब्रमण्यम अय्यर,
So he basically wrote the economic aspect of British India, and R.C. Dutt इन्होंने लिखा है Economic History of India. So all these are very important when we talk about the economic critique of colonialism in India. Okay, so that was all about the today's session. We discussed the 7 questions. Total इस topic से I think 30 questions है. So tomorrow same time we will meet at 8 p.m. Okay, 8 p.m. would be the time. I'll be uploading the next question, the next video of the questions, upcoming questions. Please be on the time so that we can solve the questions. Okay, thank you so much.